جی تو ناظرین آپ نے اعجاز کے ویوز دیکھے جو لوگوں سے لے رہا تھا، اور انہوں نے صفائی سے متعلق بھی بات کی. لوگوں کے کچھ یہ ویوز بھی تھے کہ لوگ خود سے یہ کچرا کرتے ہیں، انہیں خود کی فیلنگ کا احساس بھی ہو گیا کہ کچرا یہاں پر نہیں تھا، اور جو ہم انسان خود ہی کچرا کرتا ہے اس خوبصورت جنت کے نظارے کو. کیونکہ جیسے اعجاز نے پہلے کہا تھا اور نوید بھائی نے بھی کہا تھا کہ جنت جو دیکھنی ہے تو پاکستان میں وہ ہے جھیل سیف الملک، اور پیچھے ہم جب گئے تھے کل لالا زار پر. تو اتنے خوبصورت مناظر ہیں میرے پیچھے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے ویوز بھی آپ نے سن لیے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک جو ہمارا ڈسکس ہوا تھا اس پروگرام سے متعلق، آپ وہ بھی ویوز سنیں گے تاکہ آخر سے لے کر شروع تک ہم نے کس طرح سے کیا کیا پلان کیا تھا، اس کے بھی ویوز، ہمارے بھی کچھ ویوز اس میں آپ سنیں گے کہ کس طرح سے مینیج کیا، ہمارا سفر کیسا رہا پیچھے سے لے کر اب تک کا، وہ سب. نوید بھائی اپنا اظہار خیال کس طرح سے بیان کریں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہمارا آپس میں پروگرام بن رہا تھا تو کہ ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے پاکستان لیول کے اوپر، کہ ہم جائیں، ایڈونچر بھی ہو، سب چیزیں ہوں. تو میں نے اعجاز بھائی سے پوچھا کہ اعجاز بھائی چلنا ہے، پروگرام بنانا ہے؟ تو اعجاز بھائی نے بولا کہ آپ ان کے کمنٹ خود سنیں. ہاں، جیسے مجھے نوید بھائی نے رابطہ کیا تھا، ریاض بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم اس طریقے سے ڈاکیومنٹری بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹریولنگ کیسی ہے اور یہاں کا ماحول کیسا ہے وہ عوام تک پہنچائے. تو میرا پہلا آنسر ہی یس تھا کہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ ایڈونچر بھی ہو جائے گا اور ہم جتنی زیادہ معلومات یہاں سے لے کر ہم اپنے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں ایک بات آپ نے کہہ دی اعجاز بھائی کہ میں گھر سے تھوڑا سا مشورہ کروں گا اور اجازت لوں گا. ایسا تھا، بالکل ایسا تھا. آپ نے ایڈ کی نہیں، یہ بتانا بھول گیا اصل میں نا کہ میرے گھر والوں سے مشورہ کر لوں نا کہ اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، کیونکہ بہت ہی زیادہ ایڈونچر والا علاقہ ہے. کہ جو ابھی ہم جیسے لالا زار کل گئے تھے، بہت زیادہ ایڈونچر تھا، بہت چھوٹے چھوٹے راستے تھے اس کے اوپر جانے کے اوپر، کہ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کیوں فرسٹ ٹائم آنا ہوا تھا ہمارا. تو پھر ہم نے آپس میں پوری ٹیم نے ایک مشورہ کیا کہ جانا کیسے چاہیے ہمیں، کہ بائی ٹرین جانا چاہیے، بائی روڈ جانا چاہیے، بائی کوچ جانا چاہیے. تو پھر اس میں ایک یہ تھا کہ ہم بیچ میں کیسے رکیں گے، کیسے لوگوں کے ویوز لیں گے. جو علاقے تھے جیسے دریائے کنہار تھا اس کے اوپر کیسے رکیں گے. تو اعجاز بھائی نے بولا کہ چلیں یار ایسا کر لیتے ہیں کہ اپن پرائیویٹ اپنی کنوینس کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم چل لیتے ہیں، کہ بیچ میں جہاں رکنا ہوگا، جس علاقے میں جانا ہوگا وہاں رک لیں گے ہم. اس میں ایک چیز یہ تھا کہ یار وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، پرائیویٹ کنوینس کے اندر لمبا سفر ہے. تو اعجاز بھائی کو بہت تھکن بھی محسوس ہوئی. وہ خود اعجاز ہوتے ہیں کیا مجھے فیل ہوا اس میں. ایسا ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ کنوینس ہوتی ہے تو آپ میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی رک جاتے ہیں نا. تو اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے رک سکتے ہیں، جس ہوٹل کی طرف جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹیشن ٹو اسٹیشن چھوڑتی ہے. تو اس وجہ سے میرے یہ ویوز تھے کہ ہم ایک پرائیویٹ کنوینس کرتے ہیں. اور چونکہ ہم وہاں سے ٹرین سے آئے تھے سادک آباد تک، تو ہم نے وہاں کی پریشانیاں دیکھ لی تھی کہ ہمیں کس طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہوئے، ٹرین چل رہی تھی، رک رہی تھی، ہم ٹائم پر نہیں پہنچ سکے. تو اس کے مقابلے میں کمپیئر کیا جائے جب پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو، تو وہ زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتی ہے اور ایزی بھی ہوتی ہے. اعجاز میرے دماغ میں ایک سوال ابھی پیدا ہوا ہے. آپ ایک بات بتانا تو بھول گئے کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی تھی بیچ میں اور نیند کے آپ جھٹکے بھی لے رہے تھے، لیکن پھر جیسے کھانے کا نام سنا آپ ایک دم سے چونک کے اٹھ گئے کہ ہاں واقعی کھانا کھا لیتے ہیں. صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی تھی ٹرین میں، یا ابھی جتنا راستہ سفر کیا ہے اس میں زیادہ بھوک لگ رہی تھی؟ ٹرین میں بھی بھوک لگ رہی تھی. ظاہر سی بات ہے آپ چلیں گے تو آپ کو بھوک بھی لگے گی. چل تو ٹرین رہی تھی نہیں تو ویسے گھومیں گے تو بھوک نہیں لگے گی. لگ رہی تو آپ کو بھی تھی، اب آپ بتا رہے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے. لگ رہی ہے اعجاز انکل کو بھی تھی. ہاں اعجاز انکل کو بھی بھوک لگ رہی تھی. تو چلیں گے تو آپ کو بھوک بھی لگے گی، کھائیں گے نہیں تو پھر گھومیں گے نہیں، آپ بیٹھ جائیں گے ایک جگہ جیسے ابھی موہن انکل بیٹھے تھے جگہ جگہ پہ. وہی بات ہے نا. جی آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ کے پاپا نے آپ کو کہا کہ ہمیں چلنا ہے ناران کاغان؟ بہت اچھی فیلنگ تھی. فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ ٹائم میں مزہ بھی آتا ہے. اب فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے، سیکنڈ ٹائم آتے ہو تو آپ نے جگہ دیکھی بھی ہوتی ہے، آپ کو اتنا نہیں ہوتا. فرسٹ ٹائم ریاض بھائی کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر 6 سے 7، ہاں ریاض انکل کہہ رہے تھے کہ جیسے 6 سے 7 مرتبہ آئے، اور ریاض انکل نے دیکھی ہوئی ہے ساری جگہ. اب وہ نہ جائیں تو ان کو کہیں نہیں. آپ اور میرا تو سسپینس رہ گیا نا کہ ہم نے یہ جگہ نہیں دیکھی. جی بالکل. اعجاز آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کے کمنٹس لیے ہیں، لوگوں کے ویوز لیے، اس سے آپ کو کیا فیلنگ ہوئی ہے کہ لوگ واقعی جو چیز آپ نے ان کو نصیحت کی ہے صفائی سے متعلق، اتنا خوبصورت مناظر ہے، میں اپنے الفاظوں میں اس خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتا. آپ نوید بھائی آپ خود بتائیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، میرے ناظرین پیچھے دیکھ رہے ہیں.
वो एक बोलते हैं ना कि अल्लाह की नेमत, कौन कौन सी नेमतों को आप ठुकराओगे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर ये ऐसी जगह है कि जन्नत का एक नज़ारा है पूरा सारा, के चारों तरफ से पहाड़ हैं और बीच के अंदर एक झील सैफुल मुल्क जिसको बोला जाता है। ये भी कहा जाता है, सुनी हुई बातें हैं कि यहाँ के दरियाओं का, इस झील के अंदर परियों का डेरा था, जन्नत का डेरा था। अब खुदा बेहतर जानता है कहाँ तक ये सच है। एजाज भाई, आपको ऐसा लगता है कि कभी यहाँ परियां उतरती थी? अगर उतरती हैं तो एक शायद आपके लिए भी मखसूस कर दी जाए, आप तो बताएंगे। सर मेरी परी तो घर पे बैठी हुई है और अल्लाह ताला बेटियों की सूरत में भी दे रहा है। असल में ये है कि अगर इस कोई भी खूबसूरत जगह होती है तो वहाँ पर इस तरह की बातें बनती हैं, उनके बारे में कहानियाँ बनाई जाती हैं। मेरा मानना यह है कि हकीकत में चूँकि परियां इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास है नहीं। हमारे पास हूरों का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास चुड़ैलों का कॉन्सेप्ट है, जिन का कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यह कि देखें, जो कहानियां बनाई जाती हैं ना, वो सुनाई जाती हैं, तो वो इस तरीके से होती हैं कि वहाँ पर चूँकि लोगों का पहुंच नहीं होती है किसी जगह पर। बचपन में हमारी दादी अम्मा सुनाया करती थी हमें सुलाने के लिए कहानियां। आपको तो ये भी बताया गया होगा ना कि चांद में एक बुढ़िया बैठी हुई और वो जो है चक्की पीस रही है और वो सारी चीजें। वो क्या होता है कि जब आप किसी चीज पर पहुंच नहीं सकते हो और आप उस चीज को दूर से देख रहे होते हो तो उसके बारे में आपकी इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाती है, उसके बारे में आपके तसव्वुरात बनना शुरू हो जाते हैं और उन तसव्वुरात को आप एक कहानी की शक्ल, उन तसव्वुरात को आप कहानी की शक्ल दे देते हैं। तो वो जो आपके तसव्वुरात कहानी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ना, वो आगे से आगे पास होते हैं और लोग उसको हकीकत समझना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक कहानी बनाई गई किसी को बहलाने के लिए, और जब वो आगे पहुंची तो लोग उसको हकीकत समझना शुरू हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा नवीद भाई, आपसे भी, साइम आपसे ही मेरा ये सवाल है, सबसे ये सवाल है कि जब एक शख्स एक जगह को देखकर चला जाता है तो वो ज्यादातर वहाँ जाने के बाद लोगों को यही कहता है कि यार रास्ता बड़ा दुश्वार कठिन है, डर भी इंसान को लगता है, तो वो नसीहत ये करना चाहता है कि यार ये ना जाए। अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है तो ये नसीहत करता है कि यार मैं साथ चलूंगा क्योंकि मैंने वो सारी जगह देखी हुई हैं और इससे भी ऊंची जगह भी हैं, वहां पर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो तनकीद करते हैं, यार वहां पर बड़ी गंदगी थी, यार इतनी सी झील है और वही पहाड़ है, जो आप इस साइड पे चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, वहां पर भी यही पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है, ये क्या है यार, एक तो इससे अच्छा तो हम सिंध चले जाएं, सिंध में जाके घूम लें। तो एजाज, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये इंसान की फितरत है कि एक जगह को देख लिया फिर उसके बाद उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, यार वहां तो बड़ा गंद रहता है, यार वहां नहीं जाना, यार इससे कोई दूसरी जगह चलते हैं? नवीद, पहले आप इस बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें कि एक बार देखने के बाद इंसान की वो ख्वाहिश नहीं रहती दूसरी जगह, उसी जगह को दोबारा देखने के लिए। मुझे बात ये कि मेरी एक तो फीलिंग ये है कि मैं इस जगह पे पहली दफा आया हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा सालों साल ये बातें, ये तस्करे, ये एडवेंचर मैं लोगों को बताता रहूँ कि आप लोग भी जाएं और अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जाएं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत है, कोई ऐसी गंदगी का वो नहीं है सिस्टम वहाँ कि चोरी डकैती, कोई बदमाशी, कोई तंग करेगा आपको। बहुत अच्छा है, एडवेंचर है, खूबसूरत इलाका है, फिर मौसम बहुत अच्छा है इसका। फिर ये कि जो लोग बोलते हैं यहाँ से जाने के बाद कि यार क्या करना है वहाँ जाके, मज़ा नहीं है, तो वो ऐसा है कि जलिस्पना करते हैं, ये ना जाए हम होके आगे वहाँ से, हाँ हमारी लग जाए और उसके ऊपर आपकी ना लगे। क्यों इजाज़त भाई, ऐसी बात है? देखिए, इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक हो सकता है कि उनकी सिंसियर राय हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर मुझे यहाँ पर आकर अच्छा फील हुआ, ये उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं जो वो लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। और हर शख्स हर चीज को एक जाविये से नहीं देखता, हम हर एक ही चीज को हम मुख्तलिफ जाविये से देख रहे होते हैं। अगर आपके सामने एक पानी का गिलास है और उसको आधा भर के रख दिया जाए और मैं आपसे पूछूं नवीद भाई ये पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं ये पानी का गिलास आधा खाली है। आप जो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी ठीक है। इस तरीके से हर किसी के अपने व्यूज होते हैं। कोई ये समझ रहा होता है कि मुझे यार यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं लालाजार पे गया वहां सफाई ज्यादा थी, तो जो मेरे दोस्त आएंगे मैं उनको ये बताऊंगा कि यार यहाँ गंदगी में जाने से बजाय तुम लालाजार अगर चले जाओ, तुम्हारे पास टाइम अगर कम है तो वहां चले जाओ, तो वो ज्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ फिर इस इंस्ट्रक्शन के साथ आप उनको भेज सकते हैं कि यार वहां पर थोड़ी सी गंदगी है, तुम ऐसा करना कि उसमें झील के दूसरी तरफ चले जाना, वहां कुछ आपको सफाई मिलेगी। तो आप ये इस तरीके से भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह की बातें होती हैं कि आप उसके परसेप्शन को समझने की कोशिश करें कि जो तनकीद कर रहा है, बजाय इसके कि हम सिर्फ, और एक सस्पेंस रह जाता है अगर हम ना आए उस जगह पर और हमने अपनी आंखों से ना देखा तो सस्पेंस रह जाता है। फिर आपका अपना दिमाग वहां पर कितना काम करता है कि आप जो लोग उसकी तारीफ करें, ऐसी बात है आपसे कुछ लोग मिले होंगे जिन्होंने इसकी बहुत तारीफ की होगी,
जी सी। अच्छा मोइन भाई, आज जो आपका प्रोग्राम डिसमिस हो रहा था आने के लिए, और अब यहाँ आके आप क्या महसूस कर रहे हैं कि नहीं आते तो सारी जिंदगी के लिए पछतावा होता है, नहीं होता? नहीं तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि मैंने वाकई ही कल रात को आपको कहा था कि एक ये स्कीप कर हम कहीं आगे चलते हैं, तो इंसान अपनी पॉकेट को भी देखता है। नहीं भाई, ये पर्सनल आपको मैंने रात को शेयर कर दी थी। रियाज भाई भी इस बात को जरा गौर से सुन रहे होंगे। रियाज भाई, आप मुझे पता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो मेरी फीलिंग ये है नवीद भाई, पर्सनल मैं अपनी फीलिंग ये बताऊं कि मैं यहाँ पर आने के बाद वाकई ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ नहीं आता तो मैं बड़ा दिलचस्प नज़ारा, जिसके बारे में बड़ी लोगों से तारीफ सुनी है मैंने पर्सनली कि यार लाला जार है, इसके अलावा आज सैफुल मुलूक पे हम बैठे हैं, हर शख्स टंडोलियार का जो भी यहाँ से गया है घूम के, उस शख्स को मैंने सुना है वो तारीफ करता है यार बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा दिलकश मनाजिर है, और एक छोटी सी एक कहते हैं ना जन्नत का जो एक टुकड़ा है वो यहाँ पर मौजूद है। तो वाकई आज मैंने देखा है यहाँ पर, और मैं थैंक यू करता हूँ आपको नहीं कि आपने मुझे कायम रखा, एजाज आपका भी, रियाज भाई आपका भी, और साइम आपका भी, कि आपने मुझे इतना पीछे से स्ट्रॉन्ग किया कि आज यहाँ पर चलना चाहिए। रास्ता भी थोड़ा सा खतरनाक था, जैसे सैफुल मुल्क आए हम लोग नारायण से, कल जहाँ पर हम लालाजार गए थे वहाँ का भी डेंजर था, लेकिन एडवेंचर है, बड़ा मजा आ रहा है। अब मेरे बराबर में साइम बैठे हुए, बड़ा रास्ते में तो बड़े पकड़ के बैठे हुए थे। साइम, पहले मैं आपसे छोटी सी एक बात ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पर पहली बार आए, मेरे साथ साथ एजाज पहली बार आए, आपके बाबा भी पहली बार आए। साइम, आप यहाँ से जाने के बाद लोगों को क्या बताएंगे, क्या मैसेज देंगे कि यार आप लोग वहां जाएं या ना जाएं? यार सफर बड़ा, 4 दिन बाद हम नारायण पहुंचे, ऐसे ही रात को बोल रहा था एजाज कि यार सफर बड़ा लंबा है और थकावट हो जाती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? यार डायरेक्ट नारायण ना जाओ, या स्टे करते हुए जाओ, या छोटे छोटे शहरों से घूमते हुए जाओ, आखिर में यहाँ जाओ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपने दोस्तों को जाकर, या और कुछ नसीहत करना चाहेंगे कि उन्हें मैसेज? देखिए मोइन भाई, मैं यही नसीहत करूंगा ना कि जाएं आप लोग वहाँ पर, है ना। जिंदगी में 1-2 बार ही आना होता है ऐसी जगहों के ऊपर, रोज रोज तो आप नहीं आ सकते इतनी दूर से सिंध से। लोगों को यही नसीहत करनी है, जाओ। और जाओ, वही बात ना कि आप बोलेंगे कि जेलिस हो रहे हो कि आप उनको मना कर रहे हो कि आप नहीं जाओ। जाओ, वहाँ पर जाके सफाई का आप खास ख्याल रखो, और लोगों को भी नसीहत करो, और आप भी खास ख्याल रखो, घूमने जाओ। और आप बोले ना सफर की बात, सफर तो बहुत लंबा है, इतना घूमने की बात, सफर तो आपको लगेगा। खतरनाक इलाके हैं यहाँ, सैफुल मुलूक का, और अपन लालाजार गए थे, उधर बहुत कोने से गाड़ियां निकल रही थी, डर भी लग रहा था। और वही बात ना, लालाजार में बहुत सफाई थी, बहुत खूबसूरती थी। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी, और वो गंदगी इस आवाम की वजह से, ये आवाम ही करती है ना ये गंदगी। हमें चाहिए कि आवाम को भी सिखाएं, और हम खुद भी इस पे ना करें कि कचरा ना करें, और आवाम को भी यही बात। आप क्या दोबारा से यहाँ पर आने की ख्वाहिश रखते हैं? ख्वाहिश तो सभी रखेंगे यार, क्यों नहीं रखेंगे, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। एजाज, आप क्या ख्वाहिश रखते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ एक बड़ा ट्रिप बनाकर यहाँ पर आएंगे? ये डिपेंड करता है मौके पर, और मैं तो कहूँगा मैं ये बार बार आऊँ। और यहाँ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नेचर को एक्सप्लोर करने का शौक है। मैंने आपको बताया था, मुझे स्काई डाइविंग का बहुत ज्यादा शौक है, माउंटेन क्लाइंबिंग का बहुत ज्यादा शौक है। उससे क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा लेसन्स मिलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है, बहुत ज्यादा तस्वुरात मेरे जहन में पैदा होते हैं, जो मैं अभी पहले भी प्रोग्राम में बात की। ये जुमला मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसी जगहों को तलाश करते हैं जहाँ पर तस्वीर अच्छी आती हो, लेकिन हमें उन्हीं जगहों पर जाकर ऐसे पॉइंट जो है वो ढूंढने चाहिए जहां पर तस्वुर अच्छे आते हो। हम बचपन से सर एक लेसन पढ़ते हुए आए शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के बारे में, कि शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने एक झील के किनारे जाकर आबाद हो गए। वहां पर उन्होंने उनको वहां बैठ जाया करते थे, तो वहां उनको खामोश माहौल मिलता था। तो आप देखें कि उस झील के किनारे बैठकर उन्होंने कितनी खूबसूरत शायरी की है, उस झील के किनारे बैठकर उन्होंने अल्लाह की कितनी खूबसूरत शान बयान की है, उस झील के किनारे बैठकर उन्होंने अल्लाह तबारक तआला की हर मखलूक को किस तरीके से अपने मैसेजेस पहुंचाएं, तो वहां तख्लीकी जहन बनते हैं। तो आप जब कुदरत की खूबसूरती के पास बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, तो आप एक तख्लीकी जहन पाते हैं। तो जितनी भी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपका अपना मुल्क है, जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ तफरीह करेंगे, तो आप रिलैक्स होंगे, आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पर ला सकते हैं, रिलैक्स होंगे। दूसरी बात यह कि यहाँ के मुकामी लोगों को, चूंकि उनका रोजगार जो है वो इन्हीं सियाहों से चलता है, जब टूरिस्ट आते हैं तो उनका घर चलता है। तो कोशिश करें अपने अल्लाह ताला की इस शान को देखने जरूर आए, ना सिर्फ यहाँ, जहां जहां भी आपको मौका मिलता है। और मैं जो कहता हूँ कि जो जगहें हैं वो लोगों से खूबसूरत होती हैं, तो मेरे साथ इतने खूबसूरत लोग हैं तो मुझे एंजॉय करूंगा, और जितनी मरतबा आऊंगा इंशाल्लाह और खूबसूरत लोगों के साथ भी आऊंगा तो और ज्यादा एंजॉय करूंगा।
कुछ लोगों के ना आने की वजह ये होती है कि हम न्यूज पे सुनते हैं कि यार वहां पर बर्फ के नीचे कुछ लोग दब गए। जिस तरह से हम लोग अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा था कि 3 लोग बर्फ के नीचे वहां सेल्फी बना रहे थे। तो नवीद भाई हमने देखा था, साइम आपने भी देखा था और आज के न्यूज़पेपर में भी है कि उनमें से एक शख्स जो है हलाक हो गया, 2 जख्मी है। तो वो शख्स बेहतियाती करते हैं। मैं एजाज से आगे एक सवाल करने वाला हूँ, नवीद भाई आपसे भी एक सवाल करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आने से डरते हैं, वो यही चीज को देखकर कि न्यूज में सुनते हैं या कोई न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि यार वहां पर ग्लेशियर के ऊपर से बर्फ गिरी और नीचे लोग दब गए और वो सेल्फी बना रहे थे, यार घूमने गए थे, टूरिस्ट है, कहीं से भी आए थे। तो इस तरह से, और जैसे कि एजाज रात को हम लोग लेटे हुए थे जब थोड़े जल्जले के झटके भी महसूस हुए थे नवीद भाई, तो कुछ इस चीज को भी देखकर लोग नहीं आते कि यार वहाँ बहुत पहाड़ी के ऊपर है तो वहाँ पे जल्जले ज्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिस तरह के यहाँ के लोगों ने इंतजाम किए हैं, उन लोगों के घर इस तरह से बने हुए कि जल्जले के झटके आते रहते हैं और उनके लिए नॉर्मल सी बात है। हम लोग रात को जब बाहर निकले तो वो एक शख्स कह रहा था कि बस 2 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, फिर 5 मिनट के बाद उसने दोबारा हमें कहा कि बस अभी कोई मसला नहीं है कि अब अंदर चले जाएं, अब दोबारा से सो जाएं, कोई मसला नहीं है। तो इसकी मुझे बात याद नहीं आ रही नवीद भाई, आप भी बाहर थे मेरे साथ, उसने क्या रीजन बताया था कि 5 मिनट के बाद उसने डायरेक्ट कहा बस अब चले जाए। तो मुझे वो बात एजाज मेरे भी जहन में नहीं आ रही कि उसने क्या कहा था। वो ऐसा था कि एक टाइम पीरियड होता है जलजले के झटकों का ना, 2 से 5 मिनट के अंदर जितना आना होता है उसके बाद फिर आना होता है। हो सकता है कि उससे तेज वो झटके ना हो, तो उसमें ये एक एहतियाती तदाबीर ये होती है, जहाँ आप अगर कमरे में हों बैठे हो तो आप मैदान के अंदर आ जाएं, रोडों के ऊपर आ जाएं, ताकि कोई नुकसान हो रहा हो तो उससे हम बच जाएं। ये एहतियाती तदाबीर है उसके अंदर ना। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मैं तो सोया हुआ था कि मोइन भाई के जल्जले के झटके लगे, फिर आप लोगों ने उठाया, बोले उठे जल्दी से, कि जल्जले के झटके लग रहे हैं। तो मैं एकदम उठ के फिर मैं बाहर आया। उस बात का आपको थैंक यू है दोनों को, इजाज भाई। हाँ, वो जो वजह थी ना, वो आफ्टर शॉक्स होते हैं। जब एक जल्जला आता है ना, उसके थोड़ी देर के बाद वो आफ्टर शॉक्स होते हैं जल्जले के, अर्थक्वेक के। तो असल में ज्यादा नुकसानदेह वो होते हैं, क्योंकि जब पहली मरतबा झटका आता है ना तो दीवारें हिलती हैं, और जब आफ्टर शॉक्स होते हैं तो वो जो दीवारें ना वो गिर जाती हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी, और ये हमने बहुत अच्छा किया कि हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। बाकी जो आप बात कर रहे थे ग्लेशियर्स वाली, तो देखिए अब ग्लेशियर के नीचे सेल्फी लेना कहीं की अक्लमंदी नहीं है, कहीं की बहादुरी नहीं है। आप दूसरी बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जहां पर आप सेल्फी ले सकते हैं और आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें जहां पर आप सेल्फी ले सकते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जहां पर प्रिकॉशंस उन्होंने बताए हमें, जो टूरिस्ट हमारे, जो गाइड हमारे साथ होते हैं, जो मुकामी लोग हमारे साथ होते हैं, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, यार इस पहाड़ी पर मत जाना, इस झील की तरफ मत जाना, या यहाँ पर पत्थर होते हैं वहां पर नहीं जाना। तो आप उनको फॉलो करें। आप जितना सेव होकर अपनी ट्रिप को एंजॉय करेंगे उतना बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के डर से आप गिरने के डर से अगर आप बच्चे को चलना ही नहीं सिखाएंगे तो फिर कैसे वो चलना सीखेगा। तो अगर आप इस खौफ से कि यहाँ पर रास्ते खतरनाक है और आप आएंगे नहीं, तो कभी भी आप 2 कदम आगे चलना चाहिए हमें। नहीं, डर को दबा के और आपको आगे जाना होता है। जब आप आगे जाते हैं तो मंजिल बड़ी खूबसूरत आपको नजर आती है। और एक और बात आपने की थी, जो कि ये प्रिकॉशंस में जो झटके लगते हैं, और इस वजह से तो भाई झटके तो हमारे सिंध में भी आए थे और वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अर्थक्वेक झटके तो कहीं भी आ सकते हैं, और जहां आपकी लिखी हुई होती है वहां आपको मौत ले जाती है। अच्छा साइम, आप जब रात को सो रहे थे, जब आपको हमने उठाया कि जल्जला आ गया, थोड़ा सा बाहर आ जाओ, तो उस टाइम आपको डर लगा या आप सोच रहे थे कि उस टाइम माइंड में क्या था आपके? देखिए, आप लोगों ने उठाया था, मैं जो सो रहा था मुझे पता ही था, आपने ही देखा था, आप बोल रहे कि छत हिल रही थी, छत हिल रही थी। आप मैं बाजू अंकल सब बाहर आ गए थे तो एकदम डर सा महसूस हो रहा था। वो सारी आवाम बाहर आ गई थी ना, जो रूम्स के अंदर थी, उनको भी डर लग रहा था। वो भी उठे हुए होंगे, सो रहे नहीं होंगे, उनको भी डर लग रहा था। हमें ऐसा करना चाहिए, जो जल्जले के झटके लगे ना तो कमरे में हो तो बाहर आ जाए। इस वजह से आपको दोबारा नींद आ गई थी? हाँ, मुझे तो दोबारा नींद आ गई थी। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एजाज, एक शख्स हमें मिले थे, वो यहाँ पर 90s की खूबसूरती बता रहे थे कि उस वक्त क्या खूबसूरती थी और आज की क्या खूबसूरती थी। कुछ तब्दीली उन्होंने बताई कि क्या तब्दीली आई थी, तो वो हमारे नाजरीन को आप जरा बयान कर देंगे, उन्होंने क्या अपनी अल्फाज बताए थे?
हाँ, वो एक अंकल थे, वो बता रहे थे कि वो यहाँ पर 80s में आए थे और वो कह रहे थे कि उस वक्त ये झील बहुत खूबसूरत थी। उसकी वजह ये थी कि जो रोड थे वो सिर्फ कागान तक बने हुए थे और कागान से आगे बहुत मुश्किल रोड था। तो जो सिर्फ सख्त जान लोग होते थे या जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस लोग होते थे वो आगे आते थे, और तादाद कम होने की वजह से यहाँ सफाई का इंतजाम ज्यादा था और खूबसूरती को मेंटेन रखा हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे रोड आगे तक बनते जा रहे हैं वैसे वैसे खूबसूरती जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि आवाम ज्यादा आती है तो वो कचरा करती है। मैं इसको दोनों तरीके से बयान करूंगा। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों नहीं, क्या हमारी 20 करोड़ आवाम को हक नहीं है कि वो झील सैफुल मलूक को आकर देखें? हमारी तमाम की तमाम पाकिस्तान की आवाम को ये हक नहीं है, तो बनाए जाने चाहिए रोड। अगर हम ये देख करके यहाँ पर आवाम कचरा करती है तो हम इस खूबसूरती को ही बंद कर देंगे। अगर हम ये सोच करके यहाँ लोगों को कम आना चाहिए तो हम अगर इस खूबसूरती के मकामात को बंद कर देंगे तो इन लोगों के रोजगार में भी कमी आएगी। एक बात ये छोटा सा मुझे अब ये इसी खूबसूरत मनाजिर से मुतालिक मेरी बात ये कि एक वो सतह समंदर की बात भी बता रहे थे कि कितना ऊपर है वो, अगर आपको मालूम है तो वो भी जरा शेयर कर दीजिएगा। एग्जैक्टली तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई 30,000 से ज्यादा फीट जो है वो बुलंद है ये सतह जमीन से। जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि यहाँ के लोगों के रोजगार भी इससे लगे हुए हैं ना, तो अगर आप सियाहों की तादाद कम कर देंगे तो इनकी रोजगार भी कम हो जाएंगे। अगर उनकी गाड़ियों के रोजगार कम हुए हैं तो उनके दूसरे रोजगार, होटलों के रोजगार बढ़ गए, उनके दूसरे मामलात अच्छे हो गए। तो एक चीज को खत्म करने के लिए आप आंखें नहीं बंद कर सकते। आपको चाहिए कि आप इस सफाई के लिए इंतजामात और बेहतर करें, आप लोगों को शऊर दें, आप लोगों को इतना तालीमी याफ्ता करें कि वो यहाँ पर कचरा ना करें, बजाय इसके कि आप इस पॉइंट को ही बंद कर दें। तो मैं तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे तरीके से लेता हूँ, वो उनकी अपनी एक राय थी, उसका भी एहतराम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, जिस तरह आप बता रहे थे कि लोगों के लिए सहूलत बढ़ी है, तो उनका कारोबार जीप का जो था कि वहाँ से कम हुआ, तो यहाँ पर आकर टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए मौके मिल गए, वो यहाँ पर अगर स्टे भी करते हैं खाने पीने के, और भी यहाँ पर इमारतें बन रही हैं। एजाज, इसके अलावा एक बात ये है कि हुकूमत ने इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ है, डस्टबिन लगाए हुए हैं, तो हुकूमत के अहलकार और कितने होने चाहिए यहाँ पर के, और कोई ऐसा गाइड हो जो इंटर होते के साथ ही लोगों को समझा दे, हिदायत कर दे, जो इस खूबसूरती से मुतालिक हो कि वहाँ पर जाकर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए, और इस जगह पर नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे जाना मना है। तो लोग पीछे से ये उनके माइंड में ये बात आ जाएगी, गोल सेट हो जाएगा, वहाँ जाकर इस चीज़ की बड़ी पाबंदी है हुकूमत की तरफ से कि वहाँ पे कचरा फेंकना मना है। डस्टबिन तो लगे हुए हैं, जैसे आपने पीछे भी व्यूज लिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हुकूमत ने इंतजाम किए हुए हैं और कुछ और इंतजाम कितने करने चाहिए, और क्या क्या सहूलतें और मुहैया करनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ने जितने इंतजामात करने थे वो बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। अगर हम रास्ते में देखें तो हर जगह पर जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग एरिया था वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है, तो आप एहतियात से गुजरें, आपको ऊपर से पत्थर आता हुआ नजर आए तो आप गाड़ी पीछे रोक लें, और इस तरीके से ये अपनी वो ना दिखाएं कि भाई मैं निकल जाऊंगा जब तक पत्थर नीचे आएगा। तो वो मेंशन्ड थे जहाँ जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग एरियाज होते हैं, यहाँ पर डस्टबिन पड़े हुए, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि आप इनको इस्तेमाल करें। अब हुकूमत ये हर बंदे को तो नहीं बता सकती, उसके हाथ से कचरा पकड़ के तो डस्टबिन में नहीं डाल सकती। तो ये शऊर है, ये शऊर हमारे सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ना शुरू करता है तब से उसके अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि इस जगह पर आकर कचरा ना फेंकें, आप अपने घर के बाहर भी कचरा ना फेंकें, आप अपने रोड के ऊपर भी कचरा ना फेंकें, जिस जिस जगह पर आपको रहना है उस जगह पर कचरा ना फेंकें। तो ये एक शऊर की बात है जिसको हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसमें आवाम को ही शऊर दिया जा सकता है। मैं आपकी बात से तजाद करूंगा एजाज भाई कि यहाँ जो हम देख रहे हैं एक सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है ना। अगर सिक्योरिटी के लोग यहाँ गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे और जो लोगों को कचरा फेंकते हुए देखे, गंद करता थे, उनको रोकें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रोक सकते, इंतजाम गवर्नमेंट कर सकती है यहाँ पे। और अच्छा है कि ये एक हमारी खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी है, इसके अंदर तो जितने एफर्ट्स गवर्नमेंट को करने चाहिए वो करने चाहिए, वो चाहे किसी की गवर्नमेंट क्यों ना हो, क्योंकि ये इलाका एक खूबसूरत है। एक पाकिस्तानी आवाम नहीं आती, पूरे पाकिस्तान से आवाम नहीं आती, बाहर से यूरोपियन लोग भी आते हैं नहीं, तो वो ये चीज़ें देखेंगे तो क्या सोच के हमारे बारे में क्या सोच के जाएंगे वो। तो थोड़ा सा इस बारे में आप देखिए, आपने इंडोनेशिया में विजिट किया था रिसेंटली, तो क्या वहाँ लोग मौजूद थे जो आपको मना कर रहे थे कि आप कचरा ना फेंकें? नहीं, वहाँ तो ऐसा था कि एजाज भाई के जो वहाँ के लोग थे तो वो खुद ही ऐसा था कि कचरा नहीं फेंकते, एक शॉपर या बैग उनके पास होता था, वो उसमें डालते थे। और आपके पास?
میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر اچھا ہمیں مجھے کوئی چیز میں بوتل پی ہے یا کوئی چینگم کھائی ہے تو اچھا جب میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک خوف تھا کہ میں یہ چیز کروں گا تو مجھے چلان ہو جائے گا. بالکل دیکھیں نا وہاں پر بھی سیکیورٹی نہیں تھی. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر 10,000 لوگ موجود ہیں تو کیا ہم 10,000 اہلکار کھڑے کریں جو ہر بندے کو منع کرتے رہیں کہ آپ نے کچرا نہیں پھینکنا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ آپ کو سیکیورٹی اہلکار نظر نہیں آئے اس کام کے لیے. انہوں نے اپنی عوام کو شعور دیا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کیمرے لگا دیں, آپ سب کچھ کر دیں, لیکن آپ جب تک شعور نہیں دیں گے نا تو اس میں بہتری نہیں آئے گی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ چیز سکھانی ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی کچرا نہیں پھینکنا. یہ کچرا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعور دینے کی زیادہ ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اہلکار کھڑے ہوں. لیکن اب دیکھیں جب ہم پل پہ سے آ رہے تھے تو پل کے اوپر اہلکار موجود تھے جو ان کی ڈیوٹی ہے انہوں نے مینٹین کرنے کا اس طریقے کا کام ہو رہا ہے. لیکن اب کچرا نہ پھینکنا, تھوک نہ پھینکنا, پیک نہ پھینکنا یہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی جب تک آپ عوام کو شعور نہیں دیتے. اس میں ایسا ہے نا کہ اعجاز بھائی کہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کو ہی گندا کریں. اچھا یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی پان کی پیک, گٹکے کی, مین پوری کی, سگریٹ کا پھلا یہ پھینکتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں, یا کوئی شاپر یا بوتل منرل واٹر یا کولڈ ڈرنک پھینکی ہے, جوس کا ڈبہ گھر کے اندر ہم نے پھینک دیا تو ہمیں گھر کے اندر یہ چیزیں کچرا پھیلا کتنا برا لگتا ہے. پھر اپنے گھر والوں کو بولتے ہیں یہ دیکھو یہ غلط ہے, یہ چیزیں اٹھاؤ یہاں سے کرو. تو یہ چیزیں ہم یہاں باہر نکل کے بھی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, شعور دے سکتے ہیں. یہ ہر آدمی پاکستان کا اپنی ذمہ داری سمجھ لینا, سمجھ لے کہ یہ چیزیں نہ کریں. وہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں پہلے کہ میں اب یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہوں بیٹھ کے اس کے اوپر چینل کے اوپر بیٹھ کے, اور پھر میں خود ہی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بوتل پی اور وہ پھینک دی بغیر ڈسٹ بن کے, سگریٹ پی وہ پھینک دی, گٹکا کھایا تو پھینک دیا. دیکھنے والے لوگ کیا کمنٹس میرے بارے میں کریں گے, یار ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ اور اب یہ خود ہی یہ کر رہے ہیں. تو اپنے سے عمل شروع کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. موہن بھائی آپ کی کیا ہے رائے اس میں؟ بالکل نوید بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ خود سے وہ عمل انسان کو کرنا چاہیے. اعجاز نے بھی جیسے کہا, میں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ وہ پل سے جب ہم لوگ آ رہے تھے تو وہ رکنے نہیں دے رہا تھا, وہ شخص پر سیٹی بار بار بجا رہا تھا. تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو جائے, زیادہ لوگ پل پر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس نے اپنی وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے اور حکومت کی طرف سے انتظام تو ہے, لیکن انسان جب تک خود اپنے آپ سے وہ اصول رول اینڈ فالو نہیں کرے گا تو جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی تو ناظرین بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں یہاں پر. آپ اگر میرا ریاض بھائی اس نظارے کو دکھا سکے, پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر برف جمی ہوئی ہے اور میرے ہی پیچھے ایک اور یہ جو جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے. بڑا خوبصورت نظارہ ہے یہاں پر. بہت اعجاز میں یقین کریں کہ میں الفاظ میرے پاس نہیں ہے اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے. ایک سائم کے میں ویوز لے لیتا ہوں کہ سائم آپ اس خوبصورتی کو ہمارے ناظرین جو اس کو گھروں میں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, انہیں اپنے الفاظوں میں کس طرح سے بیان کریں گے اس قدرت کے خوبصورت شاہکار کو, اس قدرت کے خوبصورت نظارے کو, جنت کا ایک جس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں ایک جنت ہے, اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیں اگر ہم کچرا خود پھینکیں گے تو لوگ بھی پھینکیں گے, صحیح نا. اگر ہم خود صاف ستھرا اس جگہ کو رکھیں گے تو لوگ بھی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں گے. کیا آپ اپنی جنت کو گندا کرو گے کبھی؟ تو پھر آپ اس جگہ کو کیوں گندا کرو؟ یہ بھی ایک جنت جیسی جگہ ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی احتیاط کریں اور لوگوں کو بھی بولیں کہ آپ بھی احتیاط کریں تاکہ ادھر گند نہ ہو. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا سفر نامہ جو ہم آپ کو بیان کر رہے تھے, اپنی ڈسکس کر رہے تھے, ہم آپس میں بیان بھی کر رہے تھے. تو جنت کے خوبصورت نظارے کو ہم لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں اب چل کر. ناظرین جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام شروع سے لے کر آخر تک کا آپ سب کو بہت پسند آئے گا. آگے بھی جیسے چلتے جائیں گے آپ کو قدرت کے نظارے دکھاتے جائیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.